بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل شمیر بی کے ڈبلیو وائس کے معزز دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ یہ ایک غیرت مند پہلوان کی کہانی ہے جو قتل ہو گیا تھا اور اس کی تفتیش میں نے کی تھی۔ میری کہانیاں پڑھنے والے جانتے ہیں کہ میں واردات والے شہروں، قصبوں، دیہات اور کرداروں کے اصلی نام نہیں لکھا کرتا۔ کہانی کی سہولت کے لیے فرضی نام استعمال کرتا ہوں۔ اب میں نے سوچ لیا ہے کہ میں کہانی سناتے وقت سن، مہینہ وغیرہ بھی نہیں لکھا کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑھاپے نے عقل خبط کر کے رکھ دی ہے اور یادداشت بہت کمزور ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی میرے خیال میں اس سے کہانی کی دلچسپی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ قتل کی جس واردات کی تفتیش سنانے لگا ہوں اس کا تعلق موجودہ بھارتی پنجاب سے ہے۔ میں ان دنوں شہر کے ایک مضافاتی قصبے کے تھانے میں تعینات تھا۔ تھانے سے 15-20 منٹ کے فاصلے پر مجھے سرکاری کوارٹر ملا ہوا تھا۔ فجر تقریباً 4 بجے کا وقت ہوگا جب میرے کوارٹر کا دروازہ بجنے لگا۔ میں اتنی گہری نیند سونے کا عادی نہیں تھا کہ میری آنکھ نہ کھلتی، بلکہ اس کے برعکس ذرا سی آواز پر میری آنکھ فوراً کھل جاتی تھی۔ اتنی سویرے دروازے پر دستک سن کر میں سمجھ گیا کہ کوئی واردات آ گئی ہے یا کوئی اور ایمرجنسی ہے۔ میں نے تھانے میں اپنے عملے سے کہہ رکھا تھا کہ ایسی کوئی بات ہو تو مجھے جگا لیا کریں۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ سامنے میرے تھانے کا ایک کانسٹیبل کھڑا تھا۔ اس نے بتایا کہ قتل کی ایک واردات کی رپورٹ آئی ہے۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ تھانے چلا جائے، میں آ رہا ہوں۔ میں نے اسے ٹالنے کی کوشش نہیں کی کہ رپورٹ درج کر لو، میں بعد میں دیکھوں گا۔ میں نے اسی وقت جائے واردات پر جانے کا فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ ابھی وہاں لوگوں کی بھیڑ جمع نہیں ہوئی ہوگی اور ہو سکتا ہے وہاں سے کھروں کے نشان یا کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے تفتیش میں مدد مل سکے۔ میں فوراً نہا کر تیار ہو گیا اور تھانے جا پہنچا۔ رپورٹ درج کرانے ایک پختہ عمر کا آدمی آیا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 35 اور 40 کے درمیان ہوگی۔ اس کے ساتھ محلے کے 2 آدمی آئے تھے۔ اس آدمی نے اپنا نام امجد بتایا۔ اس نے بتایا کہ اس کا چھوٹا بھائی قتل ہو گیا ہے۔ میں نے رپورٹ درج کر لی۔ قتل ہونے والے بھائی کا نام اسلم تھا اور وہ اچھو پہلوان کے نام سے مشہور تھا۔ پوچھنے پر اس کے بھائی نے بتایا کہ وہ صرف نام کا ہی پہلوان نہیں تھا بلکہ سچ مچ کا پہلوان تھا۔ اس کی عمر 30-32 سال کے لگ بھگ بتائی گئی۔ میں نے اس سے تھانے میں پوچھ گچھ کرنے کی بجائے راستے میں اپنے کام کی باتیں پوچھنے کا ارادہ کر لیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تھانے میں وقت ضائع ہو۔ میں ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر جائے واردات کی طرف چل پڑا۔ میں نے راستے میں مقتول کے بڑے بھائی امجد سے اپنے کام کی باتیں پوچھنی شروع کر دیں۔ اس سے حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق امجد کا ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا جس میں غریب اور درمیانہ طبقے کے لوگ کھانا کھانے اور چائے پینے کے لیے آتے تھے۔ وہ رات 1-1:30 بجے ہوٹل بند کر کے گھر آتا تھا۔ یہ اس کی مجبوری تھی کہ ہوٹل بند کرتے کرتے روزانہ یہ وقت ہو جاتا تھا۔ واردات والی رات بھی امجد حسب معمول ہوٹل بند کر کے اور ملازموں کو دہاڑی دے کر گھر واپس آیا۔ گھر آتے آتے اسے 2 بج گئے۔ اس کی بیوی نے دروازہ کھولا اور وہ جاتے ہی بستر پر گر گیا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ اس وجہ سے اس کی کئی بار بیوی سے لڑائی بھی ہوئی تھی۔ جلد ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ ابھی اسے سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ ایک دھماکے کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے کہ اسے کسی عورت کے چیخنے کی آواز سنائی دی اور اس کے بعد لوگوں کی آوازیں آنے لگیں۔ اس نے غور کیا تو یہ آوازیں اس کے گھر کے پچھلی طرف والی گلی سے آ رہی تھیں۔ اس کے چھوٹے بھائی پہلوان کا گھر بھی اسی گلی میں تھا جہاں سے شور شرابے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ بھاگم بھاگ اس گلی میں گیا تو اسے اپنے بھائی کے گھر کے سامنے لوگوں کی بھیڑ نظر آئی۔ وہ گھبرا کر پہلوان کے گھر کی طرف بھاگا۔
अंदर जाकर देखा तो उसकी भाभी यानी पहलवान की बीवी रो रही थी। चारपाई जिस पर पहलवान सो रहा था उसके नीचे खून ही खून जमा हुआ था। बिस्तर पर भी खून था। उसने पहलवान की बीवी से पूछा कि उसे यानी पहलवान को क्या हुआ है। उसकी भाभी ने बताया कि 2 डाकू आए थे जो पहलवान को गोली मारकर भाग गए हैं। इसके बाद अमजद चंद मोहल्लेदारों को साथ लेकर थाने आ गया। अमजद का बयान सुनते सुनते हम वारदात वाले मोहल्ले में पहुंच गए। अभी सुबह के 5 बजे थे और लोग पूरी तरह बेदार नहीं हुए थे। फिर भी मैंने देखा कि वारदात वाले घर के सामने काफ़ी लोग खड़े नज़र आ रहे थे। मैं अमजद की रहनुमाई में आगे बढ़ा। एक थानेदार और कांस्टेबलों को देखकर लोग इधर उधर हट गए और हमारे लिए रास्ता बना दिया। गोली लाश के अंदर थी। ये 5-6 मरले का दरमियाना सा मकान था। बाहर वाला दरवाज़ा लकड़ी का था और बहुत पुराने वक्तों का लग रहा था। इसकी लकड़ी पर फूल बूटे खुदे हुए थे। हम उस दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो उस वक्त के रिवाज के मुताबिक आगे खुला सेहन नज़र आया जो कच्चा था। बाएं तरफ एक भैंस बंधी हुई थी और उसके साथ ही मट्टी की एक खुरली बनी थी। ऐसी खुरलियाँ देहाती औरतें खुद ही चिकनी मिट्टी से बना लेती हैं। सेहन के दाएं तरफ एक हैंड पंप नज़र आ रहा था। उसके इर्द गिर्द पक्का फर्श लगाकर एक खुरा बनाया हुआ था। उस खुरे से एक नाली निकलकर सेहन से होती हुई बाहर गली की बड़ी नाली में गिर रही थी। ये जहन में रखें कि उन दिनों गटरों और फ्लश सिस्टम का रिवाज नहीं था। ये इलाका वैसे भी देहाती माहौल वाला था। सामने की तरफ एक कतार में 3 कमरे बने हुए थे और उनसे पहले 4-5 फीट आगे को बढ़ा हुआ बरामदा था। उसी बरामदे में एक चारपाई पर पहलवान की लाश पड़ी थी। मैंने सबसे पहले लाश का नज़री मुआयना किया। लाश पीठ के बल पड़ी थी। हंसली की हड्डी के पास गोली के ज़ख्म का निशान साफ नज़र आ रहा था और इस तरफ से खून बह बह कर तकिए और बिस्तर पर जम गया था। चारपाई के नीचे भी जमा हुआ खून नज़र आ रहा था। मकतूल की आंखें अध खुली थीं और चेहरे पर अजियत का तासुर बड़ा साफ नज़र आ रहा था। मैंने उसके पूरे जिस्म का मुआयना किया। गोली के ज़ख्म के अलावा कहीं भी किसी ज़रब या ज़ख्म का निशान नहीं था। ना ही गोली के बाहर निकलने का निशान नज़र आ रहा था। उसका मतलब ये था कि गोली जिस्म के अंदर ही कहीं रह गई है। पहलवान का कद 6 फीट से निकलता हुआ था और उसका जिस्म कसरती था। वो सही मायनों में एक खूबसूरत जवान था। सच पूछें तो मुझे इतने गबरू जवान की मौत का बहुत अफसोस हुआ था। पुलिस के महकमे में रहकर दिल को पत्थर करना पड़ता है। दूसरी तरफ मकतूल की बेवा के बैन दिल हिला देने वाले थे। अभी मकतूल के ससुराल वाले और दूसरे अजीज़ रिश्तेदार नहीं पहुँचे थे। अमजद ने इतला के लिए आदमी भिजवा दिए थे। मैंने मौका पर जो कागजी कार्रवाई करनी थी वो कर ली और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। जब लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने लगे तो गम की शिद्दत से पहलवान की बेवा बेहोश हो गई। औरतें उसे होश में लाने की कोशिश करने लगीं मगर उसकी बेहोशी तवील हो गई। उस घर के साथ वाले हमसाये ने मेरे लिए एक बैठक खोल दी। मैं वहां बैठ गया। मैंने मकतूल पहलवान की बीवी से बयान लेना था लेकिन मुझे बताया गया कि वो अभी तक बेहोश है। मैंने अमजद से बाकायदा बयान लेने का फ़ैसला कर लिया और अमजद को अपने पास बिठा लिया। उसके बयान का कुछ हिस्सा जो मैंने जाए वारदात पर आते हुए रास्ते में उससे पूछता रहा था पहले सुना दिया है। पहलवान की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? मैंने अमजद से पूछा। किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, अमजद ने बताया। वो बहुत ही नरम दिल और शरीफ इंसान था। वो अक्सर गरीबों और ज़रूरतमंदों के काम आता रहता था। पिछले दिनों किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ होगा? मैंने पूछा। तौबा करे जी, अमजद ने कहा। उसके साथ झगड़ा करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वो इतना सेहतमंद और ज़ोर आवर था कि गंदम की भरी हुई बोरी उठाकर दौड़ लगाता था। आमने सामने की लड़ाई में 5-6 जवान आदमियों पर वो अकेला ही बाहरी था। तुम्हें किस पर शक है? मैंने अमजद से पूछा। नहीं जी, अमजद ने 2 टोक जवाब दिया और कहा। मेरा ख्याल है डाकू आए
اور पहलवान की आंख खुल गई। डाकुओं ने घबरा कर उसे गोली मार दी होगी। तुम्हारा ख्याल गलत है, मैंने उसे कहा। वो डाकू नहीं थे, वो सिर्फ पहलवान को कत्ल करने के लिए आए थे और उन्होंने सोए हुए पहलवान को गोली मार दी। अगर वो डाकू होते तो कुछ ना कुछ लेकर जाते, जबकि उन्होंने घर की किसी चीज़ को नहीं छेड़ा। इससे साफ जाहिर है कि ये दुश्मनी का मामला है। अमजद गहरी सोच में खो गया और कुछ न बोला। पहलवान क्या काम करता था, मैंने एक ख्याल के तहत पूछा। वो छोटी मोटी ठेकेदारी करता था, अमजद ने जवाब दिया। किसी का मकान बनवाना, कुआं खुदवाना और ऐसे ही कामों के वो ठेके ले लिया करता था। किसी से लेन देन का झगड़ा हुआ होगा, मैंने कहा और पूछा। उसके इल्म में ऐसा कोई वाक़या है? ऐसी कोई बात मेरे इल्म में नहीं, अमजद ने कहा। अगर कोई ऐसा वाक़या हुआ हो तो भाभी को पता होगा। मैंने उसके वालिदैन के मुतालिक पूछा तो अमजद ने बताया कि उनका बाप 3 साल पहले फौत हो गया था और माँ उनके बचपन में ही फौत हो गई थी। ये लोग पहले किसी और गांव में रहते थे। उनका बाप उनको लेकर इस कस्बे में आ गया। उन दिनों ये कस्बा नया बन रहा था और लोग आकर यहाँ आबाद हो रहे थे। असलम को शुरू से ही पहलवानी का शौक़ था। इस कस्बे में आकर उसे एक पुराना उस्ताद पहलवान मिल गया, जिसने कस्बे से बाहर खुली जगह पर अखाड़ा बना रखा था। उसने असलम को सारे उस्तादी दौ पेच सिखा दिए थे। वो उस्ताद पहलवान फौत हो गया तो असलम और अच्छू पहलवान अखाड़े का उस्ताद या खलीफा बन गया। अभी मैं अमजद के साथ बातें कर रहा था कि मेरे एक कांस्टेबल ने आकर बताया कि मकतूल की बेवा को होश आ गया है। मैंने पता किया कि वो बयान देने के काबिल है या नहीं, तो मुझे बताया गया कि ऐसी हालत में है कि बयान दे सकती है। मैंने उसको अपने पास बुला लिया। कातिल 2 थे। वो आ गई। उसके चेहरे पर दुनिया जहान की वीरानी छाई हुई थी। रो रो कर उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। मुझे बताया गया था कि इनकी शादी को अभी सिर्फ 3 साल हुए थे। वो भरी जवानी में बेवा हो गई थी। उसका शेर बब्बर जैसा शोहर कत्ल कर दिया गया था। उसकी दिली कैफियत और गम का अंदाज़ा कौन कर सकता था। मैंने उसे बिठाया और उसकी झिझक दूर करने के लिए हमदर्दी की बातें की और फिर उसके सर पर हाथ रख कर दिलासा दिया। मेरी हमदर्दी पाकर वो फिर सिसकने लगी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे बयान देने के लिए तैयार किया। मुझे अपना भाई समझो, मैंने उससे कहा। अगर तुम मेरी बातों का अच्छी तरह जवाब दोगी तो मैं तुम्हारे शोहर के कातलों को पकड़कर फांसी पर लटका सकूंगा। मेरी ये बात सुनकर उसकी आंखों में चमक पैदा हुई, मगर फिर फौरन ही बुझ गई। गालबन ये चमक इस ख्याल से पैदा हुई थी कि मैं उसके शोहर के कातिल को फांसी पर लटका दूंगा। फिर उसे ख्याल आया होगा कि उसका शोहर वापस तो नहीं मिल जाएगा। इस ख्याल के आते ही वो चमक बुझ गई। बहरहाल मैंने बड़ी मुश्किलों से बातों बातों में उससे अपने काम की बातें मालूम कर ली। उसका बयान मैं आपको अपने अल्फाज में सुना देता हूँ। उसने बताया कि वारदात वाली रात बादल छाए हुए थे और बारिश का इम्कान था। वो बरसात का महीना था, इसलिए उन्होंने अपनी 4 रुपयाँ सेहन की बजाय बरामदे में बिछा ली ताकि रात को बारिश आने पर नींद खराब ना हो। उसने बताया कि अंदाज़न रात के 1:30-2 बजे का वक्त होगा जब उसे अपने करीब धमाका सुनाई दिया और वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। फौरी तौर पर उसे कुछ समझ ना आई कि क्या हुआ है। फिर उसने देखा कि एक आदमी बरामदे से सेहन की तरफ निकला और भागता हुआ बैरूनी दीवार की तरफ चला गया। वह कोई बुज़दिल औरत नहीं थी। वो उठी और उस आदमी के पीछे भागी जो दीवार की तरफ जा रहा था। उसने देखा कि दीवार पर एक और आदमी बैठा हुआ था और वो नीचे वाले आदमी का हाथ पकड़कर उसे ऊपर चढ़ने में मदद दे रहा था। दोनों आदमियों ने मुंह पर ढाटे बांध रखे थे। ठहरो ओए बेगैरतो, पहलवान की बीवी ने ललकार कर कहा। कौन हो तुम? इतनी देर में नीचे वाला आदमी भी दीवार पर चढ़ गया और दोनों बाहर की तरफ कूद गए। पहलवान की बीवी ने अपने सोए हुए शौहर की तरफ देखा और फिर अचानक उसका दिल बैठने लगा। उसे यह ख्याल आ गया था कि जिस धमाके से उसकी आंख खुल गई है
उसकी आवाज़ से उसका शौहर क्यों नहीं उठा। वो डरती डरती पहलवान के करीब गई। बरामदे में सहन की निस्बत ज़्यादा अंधेरा था और साफ नज़र नहीं आता था। उसने पहलवान के कंधे पर हाथ रखकर उसे हिलाना चाहा तो उसे हाथ में चिपचिपाहट महसूस हुई। उसने घबराकर लालटीन जलाई तो उसे शौहर के तकिए और बिस्तर पर खून नज़र आया। खून बह बह कर चारपाई से नीचे फर्श पर भी आ गया था। उसने लालटीन फर्श पर रखकर पहलवान को हिलाया जुलाया, लेकिन उसमें ज़िंदगी के आसार नहीं थे। उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर महल्लेदार इकट्ठे हो गए और पहलवान का बड़ा भाई अमजद भी आ गया। तुम्हारे शौहर की किसी के साथ दुश्मनी होगी, मैंने कहा। वो लोग मौका मिलने पर वार कर गए हैं। हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, पहलवान की बीवी ने कहा। वो इतना प्यारा आदमी था कि किसी से दुश्मनी कर ही नहीं सकता था। वो तो दोस्त बनाता था जी। किसी के साथ लेन देन का मामला होगा, मैंने पूछा। नहीं जी, उसने कहा। फिर वो कुछ सोच कर बोली। पिछले दिनों उसका मामूली सा झगड़ा हो गया था। ये आज से 8 या 10 दिन पहले की बात है। पहलवान घर आया तो उसकी चाल में हल्की सी लंगड़ाहट थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने टालने की कोशिश की कि मामूली खराश आ गई है। मैंने ज़बरदस्ती उसकी टांग से कपड़ा उठाकर देखा तो वहाँ एक ज़ख़म था जिस पर कपड़ा बंधा हुआ था। मेरे बहुत मजबूर करने पर पहलवान ने बताया कि 2 मज़दूर हड हराम किस्म के थे और काम नियत से नहीं कर रहे थे। पहलवान ने उन्हें डांटा तो तल्ख कलामी हो गई। एक मज़दूर ने खुदाई करने वाला एक औजार फेंक मारा जो टांग पर लगा। बाद में पहलवान ने दोनों को पकड़कर मुरम्मत की और उन्हें वहाँ से भगा दिया। मैंने इस बात पर गौर किया तो इस नतीजे पर पहुँचा कि ये कोई ऐसी वजह नहीं थी जो कत्ल का बायस बन सके। मामूली मेहनत मजदूरी करने वाले मजदूरों में इतनी जुर्रत नहीं हो सकती थी कि वो उस दिलेरी से कत्ल कर जाते। वैसे भी गरीब से मजदूरों के पास पिस्तौल की मौजूदगी नामुमकिन सी बात थी। बहरहाल मैंने ये बात अपने जहन में रख ली, क्योंकि तफ्तीश के मामले में मामूली से मामूली बात भी नज़रअंदाज करने का कायल नहीं था। मैंने पहलवान की बीवी से अपने काम की कुछ और बातें पूछीं और फिर उसे जाने की इजाज़त दे दी। यहाँ से फारिग होने के बाद मैंने ज़रूरी समझा कि मौके वारदात का बारीक बीनी से मुआयना कर लूँ। मैं फिर घर के अंदर चला गया और पहलवान की बीवी से पूछा कि कातिल किस दीवार पर चढ़कर भागा था। उसने बाएं तरफ वाली दीवार की तरफ इशारा किया। सेहन कच्चा था और अभी घर में लोगों की आमदोरफ्त शुरू नहीं हुई थी, इसलिए ये इम्कान था कि खुरे मिल जाएंगे। नंगे पाँव वाला कातिल। मैंने बड़ी बारीक बीनी से कच्ची ज़मीन का मुआयना करना शुरू कर दिया। बारिश का मौसम था और गुज़िश्ता रोज़ भी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से कच्ची मिट्टी सख्त हो गई थी और खुरों के निशान नज़र नहीं आ रहे थे। बहरहाल मैं अंदाजे से दीवार के उस मकाम की तरफ ज़मीन पर बैठे बैठे आगे को खिसकने लगा जहाँ से कातिल दीवार पर चढ़ा था। दीवार से 5-6 कदम पहले सहन की ज़मीन आम सतह से नीची थी और वहाँ गालबन पानी खड़ा रहा होगा, जिसकी वजह से उस जगह पर मिट्टी अभी तक बहुत नरम थी और इस मिट्टी पर बड़े साफ और वाज़े तौर पर कदमों के निशान नज़र आ रहे थे। ये निशान ऐसे थे कि मैं देखकर हैरान रह गया। हैरानी की वजह यह थी कि वो नंगे पैरों के निशान थे। ये बड़ी अजीब बात थी कि कोई शख्स वारदात करने के लिए नंगे पांव आया था। मैं खुरों के ताक़ुब में आगे बढ़ा और दीवार पर पहुंच गया। यहाँ दीवार पर ऐसे निशान बड़े साफ नज़र आ रहे थे जैसे यहाँ से कोई ऊपर चढ़ा हो। ये निशान पैरों की रगड़ के थे जो मिट्टी से लिथड़े हुए थे। दीवार काफ़ी ऊंची थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक दीवार 8 फीट या उससे थोड़ी कम ऊंची होगी। अगर ऊपर बैठा हुआ कातिल का साथी उसका हाथ पकड़कर ना खींचता तो अंदर से बगैर किसी मदद के दीवार पर चढ़ना इंतहाई मुश्किल था। मैंने पहलवान की बीवी से मालूम किया कि दीवार की दूसरी तरफ क्या है। उसने बताया कि उस तरफ खाली जगह है और उससे ज़रा आगे जाकर एक कच्चा रास्ता है जो कुछ दूर जाकर पक्की सड़क से मिल जाता है। मैंने पहलवान की बीवी को और उसके बड़े भाई अमजद को समझाया
کہ وہ کسی کو اس طرف نہ آنے دیں جہاں کھروں کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ وہ میری بات سمجھ گئے۔ امجد نے چند بڑی بڑی لکڑیاں لا کر کھروں کے نشانات کے ارد گرد رکھ دیں تاکہ کوئی اس طرف نہ آئے۔ اس کے بعد گھر سے باہر نکل آیا اور اس دیوار کی باہر والی طرف چل پڑا۔ میں نے منع کر دیا کہ کوئی میرے ساتھ نہ آئے۔ یہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ دوسروں کی لاپرواہی سے کھروں کے ضائع ہونے کا امکان تھا۔ میں بڑی احتیاط سے چلتا ہوا اس جگہ کے قریب چلا گیا جہاں سے دونوں ملزم باہر کودے تھے۔ وہاں پہنچ کر میں نے زمین کو دیکھا تو میری طبیعت خوش ہو گئی۔ زمین کیچڑ والی اور بارش زدہ تھی۔ اوپر سے کودنے کی وجہ سے دونوں ملزموں کے کھروں کے نشان بڑے صاف اور گہرے بنے ہوئے تھے۔ اتنے گہرے اور صاف تھے کہ یوں لگتا تھا جیسے موڑ تیار کیا گیا ہو۔ ایک کھرا جوتے والا تھا اور دوسرا ننگے پیروں کا تھا۔ میں نے ان کھروں کے موڑ تیار کروانے تھے۔ میں نے جوتے والے کھرے کو غور سے دیکھا۔ یہ دیسی جوتی کا نشان تھا جو دیہات میں عام استعمال ہوتے تھے۔ ایسے جوتے گاؤں کے موچی تیار کرتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ کھرے وہاں سے کچے راستے کی طرف چل پڑے تھے۔ دائیں طرف ننگے پیروں والا اور بائیں طرف جوتوں والا چل رہا تھا۔ 10-12 قدم آگے چل کر کھرے ایک دم تبدیل ہو گئے اور میں پریشان سا ہو گیا۔ آگے جا کر ننگے پیروں والے کھرے اچانک غائب ہو گئے تھے اور صرف جوتوں کے نشان نظر آ رہے تھے۔ میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ اب دائیں طرف بھی جوتوں کے نشان والے کھرے نظر آ رہے تھے۔ میں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ جو شخص گھر کے اندر ننگے پاؤں گیا تھا اور پہلوان کو قتل کر کے آیا، یہاں آ کر اس نے بھی جوتے پہن لیے ہوں گے۔ میں نے ایک خیال کے تحت ذرا ادھر ادھر ہٹ کر زمین کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ جلد ہی مجھے وہ کچھ نظر آ گیا جو میں ڈھونڈ رہا تھا۔ اس جگہ سے 3-4 گز ہٹ کر مجھے ملزموں کے جائے واردات پر آنے کے کھرے نظر آ گئے۔ میں نے ان کھروں کو دیکھا تو میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی کہ دونوں ملزموں نے جوتے پہنے ہوئے تھے، لیکن جب دیوار پر چڑھنے کا مرحلہ آیا تو قاتل نے جوتے اتار دیے ہوں گے۔ واپسی پر اس نے باہر آ کر جوتے ہاتھ میں پکڑ لیے اور ذرا آگے جا کر پہن لیے۔ میں دوبارہ واپس جانے والے کھروں کے پاس آ گیا۔ اب دائیں طرف بھی جوتوں کے کھرے نظر آ رہے تھے، لیکن یہ کھرے بائیں طرف والے کھروں سے ذرا مختلف تھے۔ اس کھرے میں پنجے کے قریب گولائی میں ابھرا ہوا نشان نظر آ رہا تھا جو اس بات کی نشانی تھی کہ یہاں سے جوتے کا تلا گھس گیا ہوگا اور چمڑے کا ٹکڑا لگا کر مرمت کی گئی تھی۔ بہرحال میں ان کھروں پر چلتا گیا۔ آگے جا کر یہ کھرے کچے راستے پر آ گئے اور پھر وہاں سے پکی سڑک کی طرف چلنے لگے۔ پکی سڑک اس راستے سے ذرا بلند تھی۔ دونوں کھرے آگے جا کر پکی سڑک پر چڑھ گئے۔ اس سے آگے کھرے ملنا ناممکن تھا جہاں سے کھرے پکی سڑک پر چڑھے تھے۔ میں وہاں کھڑا ہو کر اندازہ لگانے لگا کہ ملزم کہیں باہر سے آئے اور واردات کر کے رات کے اندھیرے میں نکل گئے۔ اس واردات کا باقاعدہ منصوبہ بنایا گیا تھا جو کوئی جرائم پیشہ ہی بنا سکتا تھا۔ میری نظریں غیر ارادی طور پر کھروں کا طواف کر رہی تھیں، یعنی میرا ذہن کچھ اور سوچ رہا تھا اور نظریں زمین پر لگی ہوئی تھیں۔ اچانک میری نظر مٹی میں دھسی ہوئی کسی چیز پر پڑی جو چمک رہی تھی، اور اس چیز کا صرف ایک کنارہ مٹی سے باہر نظر آ رہا تھا۔ میں نے کھڑے کھڑے اپنے بوٹ کی ٹو سے اس جگہ سے مٹی کو کریدا تو وہ چیز باہر نکل آئی۔ وہ پستول کی گولی کا خول یا کھوکھا تھا جو مٹی میں دب گیا تھا۔ میں نے یہ کھوکھا اٹھا کر دیکھا۔ یہ 32 کے پستول سے چلائی گئی گولی کا کھوکھا تھا۔ میں نے یہ کھوکھا جیب میں رکھ لیا۔ وجہ قتل نامعلوم۔ کھوکھا جیب میں ڈال کر میں واپس واردات والے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر میں نے کھروں کے موڑ تیار کروانے کے لیے کہا۔ ایسی ہی کارروائیوں میں 2-3 گھنٹے گزر گئے۔ آہستہ آہستہ مقتول پہلوان کے عزیز رشتہ دار وہاں پہنچنے لگے۔ عورتیں بین کر رہی تھیں اور بعض اپنے سینے پر 2 ہتھڑ مار مار کر رو رہی تھیں۔ وہاں قیامت کا سماں بنا ہوا تھا، اور کیوں نہ ہوتا، اتنا خوبصورت اور گھبرو جوان قتل ہو گیا تھا۔ میں قتل کے اس کیس پر غور کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے ابھی تک قتل کی وجہ ہی معلوم نہیں ہوئی تھی۔ اگر قتل کی وجہ معلوم ہو جاتی
تو मेरे लिए कातिल तक पहुंचना मुश्किल न होता। उस वक्त तक ये मेरे लिए बिल्कुल अंधा कत्ल था और मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था कि तफ्तीश को किस रुख पर ले जाऊं। मैंने बेहतर समझा कि थाने चला जाऊं और वहां बैठकर इस केस पर गौर करूं। उसके बाद मैं थाने आ गया। उन दिनों थाने में कोई ख़ास काम नहीं था। एक दो केस थे जो ऐसे थे कि मैंने अपने एएसआई के सुपुर्द कर रखे थे। इस वजह से मैंने अपनी तवज्जो कत्ल के इस केस पर लगा दी। मैंने अब तफ्तीश के दायरे को आहिस्ता आहिस्ता फैलाना था। सबसे पहले मैंने ये मालूम करना था कि मकतूल के करीबी दोस्त कौन कौन है। मुझे उम्मीद थी कि इनसे कोई ना कोई काम की बात मालूम हो जाएगी जिससे तफ्तीश में मदद मिलेगी। इसके अलावा मैंने अपने मुखबरों को भी इस्तेमाल करना था। मैंने अपने मुखबरों को बुलाया और उन्हें समझाया कि उन्होंने किस किस्म की बातें मालूम करनी है। वो सब अपने काम में माहिर थे और खूब समझते थे कि कौन सी बात उनके काम की है और कौन सी नहीं। इनमें थाने के बाकायदा मुखबिर भी थे और पेशावर मुजरिम भी। मेरे मुखबरों में इलाके के मुअज़्ज़िज़ लोग भी शामिल थे। एक गरीब सी औरत भी इन मुखबरों में शामिल थी। मुखबिर अपनी ड्यूटी पर निकल गए। सुबह से शाम होने को आई थी मगर अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई थी। सीधा सा गोली लगने का केस था और लाश के पोस्टमार्टम में ऐसी कोई पेचीदगी भी नहीं थी कि इतनी देर हो जाती। 1 घंटा मज़ीद गुजर गया तो लाश और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। कांस्टेबल ने बताया कि पोस्टमार्टम में देर इस वजह से हो गई कि लाश के अंदर से गोली नहीं मिल रही थी। पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर इसमें नाकाम हो गया तो एक बड़े ही काबिल ईसाई डॉक्टर ने गोली ढूंढ निकाली। रिपोर्ट में मौत की वजह गोली ही बताई गई थी। यह गोली हंसली की हड्डी के करीब से अंदर दाखिल हुई और दाएं फेफड़े को फाड़ती हुई आगे जाकर उसी तरफ के गुर्दे में से गुजरकर रीढ़ की हड्डी के आखिर में जाकर रुक गई थी। मौत का वक्त 2 और 2:30 बजे के दरमियान लिखा था। मकतूल के जिस्म पर उसके अलावा और किसी ज़ख़म या ज़रब की मौजूदगी नहीं पाई गई थी। रिपोर्ट के साथ इस ईसाई डॉक्टर ने मेरे लिए एक पर्सनल नोट में लिखा था कि गोली का इस तरह जिस्म के अंदर दाखिल होना कम ही देखा गया है। उसने यह भी लिखा था कि गोली कम फासले से चलाई गई है। इस रिपोर्ट के साथ एक सरबमोहर थैली में मकतूल के जिस्म से बरामद होने वाली गोली भी थी। मैंने ये गोली महफूज कर ली। मैंने ज़रूरी कार्रवाई करके लाश वारसों के हवाले कर दी। शाम का अंधेरा गहरा हो रहा था। मैंने बाकी की कार्रवाई अगले दिन पर छोड़ दी और अपने क्वार्टर में आ गया। मैं सुबह 4 बजे का उठा हुआ था और अब शाम के 8 बज रहे थे। मैंने सबसे पहले भारी भरकम बूट उतारे और फिर वर्दी से निजात हासिल की और बनियान और धोती पहन ली। एक मुश्तबा शौकीन मिजाज। दूसरी सुबह मैं मामूल के मुताबिक थाने चला गया। गुजरे हुए दिन की सारी थकन दूर हो चुकी थी और मैं बिल्कुल ताज़ा दम था। मैंने चंद ज़रूरी काम निपटाए और फिर पहलवान के केस पर गौर करने लगा। मुझे ख्याल आया कि मैं पहलवान के अखाड़े को भूल गया था। मुझे वहां जाकर भी पूछगछ करनी चाहिए थी। मैंने फैसला कर लिया कि सहपैर के वक्त मैं अखाड़े जाऊंगा और पहलवान के शागिर्दों से कोई काम की बात मालूम करने की कोशिश करूंगा। उसी वक्त मेरा एक मुखबिर आ गया। उसने बताया कि पहलवान वैसे तो हर एक से प्यार मोहब्बत से पेश आता था और सब लोग उसकी दोस्ती के दावेदार हैं, लेकिन उसकी राजदारी वाली दोस्ती सिर्फ एक जवान के साथ थी। उस जवान का नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन कहानी की सहूलत के लिए मैं उसे फ़याज़ लिखूंगा। फ़याज़ के मुतालिक मालूम हुआ कि वो उस कस्बे के नंबरदार का बेटा है और नंबरदार के घर वाले वारदात वाली रात वाले दिन को सुबह सवेरे किसी दूसरे शहर में शादी के सिलसिले में चले गए थे। उन्होंने 5 दिनों बाद आना था। मैंने इस मुखबिर को भेज दिया और ख़ुद फ़याज़ के मुतालिक सोचने लगा। मुखबिर ने बताया था कि उसकी और पहलवान की राजदारी वाली दोस्ती थी। ऐसे दोस्त से बड़े काम की बातें मालूम हो सकती थीं, लेकिन वो मौजूद नहीं था। मैं उसकी वापसी के इंतज़ार के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि एक कांस्टेबल ने आकर बताया कि एक आदमी मुझसे मिलना चाहता है। मैंने कांस्टेबल से उसे भेजने को कहा। कांस्टेबल चला गया
और थोड़ी देर बाद एक मुअज़्ज़ज़ सूरत आदमी अंदर आया। लिबास से तो वो दरमियाने तबके का लगता था, लेकिन उसकी शख्सियत में एक वक़ार सा था और उसकी आंखों से ज़हानत टपक रही थी। मैंने उसे इज़्ज़त से बिठाया और पूछा कि मैं उसकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। उसने अपना तारुफ़ कराया। वो एक प्राइमरी स्कूल का उस्ताद था। उसने मकतूल पहलवान के किरदार की तारीफ़ें करनी शुरू कर दी और फिर कहा कि वो इस कत्ल के सिलसिले में एक बात बताना चाहता है। उसने जो बात बताई उसे सुनकर मुझे यूँ लगा जैसे वो कातिल को मेरे सामने ले आया है और अब मेरा काम आसान हो गया है। उस मुअज़्ज़ज़ उस्ताद ने बताया कि हफ्ता 10 दिन पहले का वाक़या है कि मकतूल पहलवान की एक नौजवान के साथ लड़ाई हो गई थी और पहलवान ने कुल्हाड़ी निकाल ली थी। जिस नौजवान के साथ पहलवान की लड़ाई हुई थी वो एक हजाम का बेटा था। उसके मुतालिक मशहूर था कि वो गुंडागर्दी करता है और लिफंगा टाइप नौजवान है। उसका उठना बैठना भी बदमाश किस्म के लोगों के साथ था। झगड़े के बारे में किसी को कुछ मालूम ना था कि किस वजह से हुआ। हजाम के बेटे का नाम गालबन गुलाम मोहम्मद था, लेकिन वो गामू के नाम से मशहूर था। गामू और पहलवान की ज़बानी लड़ाई हुई। फिर किसी बात पर मुश्तइल होकर पहलवान घर गया और कुल्हाड़ी निकाल लाया। कुल्हाड़ी और पहलवान के तेवर देखकर गामू भाग खड़ा हुआ। पहलवान उसके पीछे भागा मगर गामू निकल गया। उसके बाद पहलवान बड़े गुस्से के आलम में गामू के बाप के पास चला गया। कुल्हाड़ी उसके हाथ में थी। पहलवान ने गामू के बाप से कहा कि वो अपने बेटे को बांध कर रखे। अगर आज के बाद वो मेरे मोहल्ले में आया तो काट कर रख दूंगा। हजाम ने अपने बेटे की तरफ से पहलवान से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो अपने बेटे को समझाएगा। क्या आपको मालूम है कि झगड़ा किस वजह से हुआ? मैंने पूछा। ये नहीं मालूम हो सका, उसने कहा। लोगों ने पूछा भी, लेकिन पहलवान ने कुछ नहीं बताया। गामू के मुतालिक मशहूर है कि वो औरतों से दोस्तियां लगाने का शौकीन है और कभी कभी तवाइफों के पास भी जाता है। उसने ज़रूर किसी की बहन बेटी को छेड़ा होगा। पहलवान को इसका इल्म हो गया होगा। पहलवान बड़ा गैरतमंद इंसान था और मोहल्ले की तमाम औरतों को अपनी बहन बेटी समझता था। गैरत के मामले पर वो लड़ने मरने पर उतर आता था। सारी बात सुनाकर उस मुअज़्ज़ज़ उस्ताद ने कहा कि किसी को ये मालूम न हो कि ये बात मैंने आपको बताई है। उसने बताया कि गामों के लिफंगेपन और ओछी आदतों की वजह से कोई भी उससे उलझना पसंद नहीं करता। यही वजह है कि किसी ने थाने में ये बात नहीं बताई। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उसके जाने के बाद गामों के मुतालिक गौर करने लगा। मैंने उसी वक्त एक हेड कांस्टेबल को बुलाया और उसे गामों के मुतालिक बताया और कहा कि उसको थाने ले आए। मैंने कांस्टेबल से ये भी कहा कि अगर वो आने में बहानाबाजी करे तो उसकी मुरम्मत कर दे। हेड कांस्टेबल चला गया। तकरीबन आधे घंटे बाद हेड कांस्टेबल गामू को लेकर आ गया। मेरा ख्याल था कि एक हजाम का बेटा मामूली से कपड़ों में होगा और शक्ल से ही गरीबी बरस रही होगी, लेकिन वो मेरी तवक्का के खिलाफ बड़े अच्छे और महंगे कपड़े पहने हुए था और उसके चेहरे पर भी जवानी की रौनक थी। वो काफ़ी घबराया हुआ नज़र आ रहा था। मैंने उसे बैठने को कहा तो वो झिझकते हुए बैठ गया। उसके बैठने का अंदाज ऐसा था जैसे अभी उठ खड़ा होगा। सुना है तुम्हारा बड़ा दबदबा है लोगों पर, मैंने उससे कहा, और लोग तुमसे डरते हैं। वो मेरा मुंह देखने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी इस बात का क्या जवाब दे। मैंने उसका खौफ कम करने के लिए उसके साथ इधर उधर की बातें शुरू कर दी। वो मेरी बातों के मुख्तसर जवाब देने लगा। रफ्ता रफ्ता वो खुल गया और बेतकल्फ़ी से बोलने लगा। उसने बताया कि उसे अपने बाप के पेशे से सख्त नफ़रत है। उसकी वजह यह है कि लोग इज़्ज़त नहीं करते, इसलिए उसने एक काटन मिल में नौकरी कर ली जहाँ से उसे अच्छे पैसे मिल जाते हैं। वो अपने माँ बाप को कोई पैसा नहीं देता था और ख़ुद अच्छा खाता और अच्छा पहनता था। सुना है तुम गुंडागर्दी भी करते हो, मैंने कहा। लोगों के रवैये ने मुझे ऐसा बना दिया है, गामू ने कहा। लोग मुझे घटिया ज़ात का समझकर अच्छा सलूक नहीं करते, हालांकि मेरा बाप मेहनत मजदूरी करता है। इसी वजह से बागी होकर मैंने गुंडे बदमाशों से यारी लगा ली। अब लोग पीठ पीछे जो मर्जी कहते हों, लेकिन मेरे सामने ऊंची आवाज़ से
बोलने की जुर्रत नहीं करते। जो तुम्हारे सामने ऊंची आवाज़ में बोले उसे तुम सबक सिखा देते हो? मैंने उससे कहा। हाँ जी, उसने कहा। ऐसे आदमी को खामोश कराना मैं जानता हूँ, इसी तरह जिस तरह पहलवान को खामोश कराया है, मैंने कहा। मेरी ये बात सुनकर वह एकदम घबरा गया। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? उसने घबराई हुई आवाज़ में कहा। मेरी पहलवान से कोई दुश्मनी नहीं थी। वो दिन याद करो, मैंने कहा, जब पहलवान कुल्हाड़ी लेकर तुम्हारे पीछे भागा था। क्या वो तुम्हें कत्ल करना चाहता था? उस दिन वाली बात? उसने कुछ सोच कर कहा। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा था। पहलवान खामखा गुस्से में आ गया था। तुम्हें उससे जान का खतरा था, मैंने कहा, इसलिए तुमने बेहतर समझा कि उसे ही ख़त्म कर दो। गामू मेरी ये बात सुनकर उछल उछल कर कस्में खाने लगा कि पहलवान के कत्ल से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। पहलवान से झगड़ा किस बात पर हुआ था? मैंने गामू से पूछा। वो जी वो, गामू ने अटकते हुए कहा, पहलवान को गलत फहमी हो गई थी। कैसी गलत फहमी? मैंने पूछा। बस जी क्या कहूँ, गामू ने कहा। पहलवान का ख्याल था कि मैं किसी लड़की के चक्कर में उसके महल्ले में आया हूँ। क्या ये सच है? मैंने पूछा। क्या तुम वाकई किसी लड़की के चक्कर में उधर गए थे? मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ मलिक साहब, गामू ने कहा। मैं इस मामले में बदनाम हो गया हूँ और मैं ऐसी हरकतें करता भी रहा हूँ, लेकिन उस दिन मैं वहाँ से गुजर रहा था कि पहलवान से तकरार हो गई। मैंने भी पहलवान से दबकर बात ना की, जिससे पहलवान को गुस्सा आ गया। मैंने अपने तजर्बे की बुनियाद पर अंदाज़ा लगाया कि वो सच बोल रहा है और कत्ल जैसा जुर्म करने की हिम्मत नहीं रखता। बहरहाल वो मेरी नज़रों में मुश्तबा था और मैं उसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। मैंने उसे धमकी दी कि वो कस्बे में शराफत से रहे और अगर उसने किसी के साथ धौंस धांधली की या उसकी कोई शिकायत आई तो मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। फिर मैंने उससे कहा कि वो कस्बे में ही रहे और बगैर बताए कहीं ना जाए। जब उसे थाने बुलाया जाए वो हाजिर हो जाए। ये कहकर मैंने उसे जाने की इजाज़त दे दी। वो चला गया तो मैंने अपने एक मुखबिर से कहा कि वो इस पर नज़र रखे। पहलवानों के अखाड़े में मैंने कुछ देर आराम किया। उसके बाद मेरा इरादा था कि पिछले पहर पहलवान के अखाड़े में जाऊंगा और उसके साथी पहलवानों और शागिर्दों से पूछगछ करूंगा। मुझे बताया गया कि पहलवान के कत्ल होने की वजह से अखाड़े में ज़ोर नहीं हो रहा। ये भी बताया गया कि पहलवान के तमाम साथी और शागिर्द पहलवान के घर ताज़ियत के लिए पहुँचे हुए हैं। मैंने अपने एएसआई से कहा कि वो पहलवान के घर चला जाए और वहाँ जो भी पहलवानों का इंचार्ज है उसे कहे कि आज सहपैर 4 बजे तमाम पहलवानों को लेकर अखाड़े पहुँच जाए।